my YouTube channel and I'm back with one more video. In this particular video, we will be solving question number 40 of exercise 1.1 of chapter number 1 angle and its measurement. In our previous video, we have solved from question number 9 to question number 30. So in this video, we will be solving all the sub questions of question number 14 and we will be completing this particular exercise. Okay, so without any further ado, let's get started with today's video. Find the angle between hour hand and minute hand in a clock. So here we have to find the angle. हम लोग को यहाँ पर angle find करना है किसके बीच में, hour hand के बीच में and minute hand के बीच में. ठीक है, so let's start with the very first question. So what is written in first question, that is 10 past 11. So 10 past 11 means 11 10. First let's draw here 10. Okay, so here we have done 10, now we have to draw 11. So whenever it will be 11 10, the hour hand would have crossed 11, but it is between 11 and 12. So we can't draw it completely at 11, but instead we have to draw it between 11 and 12. So let's write measure of a clock. So what is the measure of a clock? So you can see a clock is a complete circle, right? So what is the measure of a circle? It is 360 degree. So same is the measure of a clock. So measure of a clock will be 360 degree. Total number of markings. So marking means like the numbers which are present over here. Like we have 12, 1, 2. Like in this way, how many numbers we have? We have 12 number, right? So markings are nothing but the, like these are the markings, the numbers which are written on the clock, those are our markings. So how many markings are there? There are 12 markings. Angle between two consecutive marks. What does this means now? Here we have 5 and 6. So if we draw an angle like this, so between the two consecutive marks, these are consecutive marks. Consecutive means one after another. So after 5 we have 6. So these are two consecutive marks, and between these two consecutive marks, this is the angle which is forming. So angle between two consecutive marks is simply 360, which is the measure of the clock, upon total number of markings which is 12, that is equals to 30 degree. Okay, so here what is written, angle between two consecutive marks is 30 degree. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे क्लॉक में जितने भी मार्किंग्स है, अगर आप रैंडमली कोई भी दो मार्किंग्स ले लो, consecutive markings, okay, not any marking, here you have to take two consecutive markings and the angle between those two consecutive markings will be always 30 degree. Okay, that is clear. Angle between the marks, which two marks? 11 and 2. Now why did we consider 11 and 2? See, the angle that we need to find is this angle, like this angle. Okay, this is the angle that we need to find. Okay, so in order to find the angle between an hour hand and minute hand, what we need to consider, see, our hour hand is between 11 and 12, but you can't take like the number between 11 and 12, right? So what we need to take is, here we have to consider 11 as well. So we will start counting from 11, 12, 1 and 2. Okay, मतलब देखो आप 11 और 12 के बीच में कौन सा भी एक रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जैक्टली जो हमारा आर हैंड है वो 11 और 12 के बीच में कहाँ एग्जैक्टली लाई कर रहे, राइट? सो हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर नहीं उठा सकते. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ओनली द पार्ट बिटवीन 12 एंड 2, हम लोग को पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो पूरा जो एंगल है ना 11 से लेके 2 तक, हम उसे फाइंड करेंगे. ठीक है, जिससे हम लोग को ये जो होल इतना जो पूरा एंगल है वो मिल जाएगा. फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम लोग एक एंगल का मेजर, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो एंगल का मेजर हम लेंगे, उसे हम ये टोटल एंगल के मेजर से सबट्रैक्ट कर देंगे. जब भी हम उसे सबट्रैक्ट करेंगे तभी हमें ये जो हमारा एक्चुअल एंगल जिसका हमें मेजर फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, 3 इंटू ईच कॉन्जिक्यूटिव, जो टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का. टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री. ठीक है, एंगल बिटवीन द मार्क 11 एंड आर हैंड. ओके, ये वाला एंगल कौन सा है, देखो ये हमारा, देखो ये वाला जो रेड से मैंने मार्क किया वो हमारा क्या है, वो हमारा है आर हैंड. एंड हमारा 11 का मार्किंग कौन सा है, ये वाला है, राइट? तो ये जो 11 है और ये जो 11 एंड 12 के बीच में जो हमारा आर हैंड है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका मेजर हम फाइंड कर रहे हैं.
वो हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स। 1/6 इंटू हम करेंगे 30। अभी 1/6 कहाँ से आया? ये आपका क्वेश्चन होगा। देखो सिंपली बता देते आपको, एक मार्क कितने मिनट में कवर करता है? 60 मिनट्स में कवर करता है, ठीक है। तो कितने मार्क्स 10 मिनट्स में कवर होंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कितना दिया है? 10 मिनट्स दिया है, राइट। हम लोग को देखना है अगर एक मार्क के लिए 60 मिनट्स लगते हैं, मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव मार्क से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव मार्क पे जाने के लिए अगर हमें यहाँ पर 60 मिनट्स लग रहा है, तो 10 मिनट्स में हम लोग कितना मार्क कवर कर सकते हैं? तो इसके लिए देखो, ये समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर समझो एक चॉकलेट का कॉस्ट है ₹5, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि 25 रुपीज़ में मुझे कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? 25/5। मतलब हम लोग ने ये वाले नंबर को इससे डिवाइड किया। इन द सेम वे हम लोग ये वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 10/60, जो कि हमें कितना मिलेगा? 1/6। एंड यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा? 1/6, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। एंड ये वाला जो चीज़ है वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग, क्योंकि आपको यहाँ पर जो मिनट्स में जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो अलग अलग ही होगा, रहे। तो उसी वे में यहाँ पर जो अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें 1/6 है, दूसरे क्वेश्चन में हमें कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा, तो इसका आंसर हमें कितना मिलने वाला है? वी विल बी गेटिंग 5 डिग्री, ठीक है। अभी मेन हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सिंपल सी बात, हम लोग को क्या फाइंड करना है? यहाँ से लेके ये वाले के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। पर हम लोग ने क्या फाइंड किया है? हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल फाइंड किया, एंड हम लोग ने और एक चीज़ फाइंड किया था। क्या फाइंड किया हम लोग ने जो हमारा आर हैंड है, जो हमारा जो 11 मार्क है, इसके बीच का भी एंगल फाइंड किया। अभी ये क्यों फाइंड किया? देखो, हम लोग ने ये पूरा एंगल का मेजर फाइंड किया, ये वाला एंगल का मेजर फाइंड किया, पर हम लोग को चाहिए ये वाला एंगल का मेजर, राइट। ये वाला एंगल का मेजर चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एंगल का मेजरमेंट है उसमें से अगर हम लोग ने ये वाला एंगल का मेजर सबट्रैक्ट कर दिया, तो हम लोग को जो एंगल इन शॉर्ट चाहिए वो एंगल मिल जाएगा, राइट। देयरफॉर एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड 90 डिग्री है, राइट। ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, उसमें से हम लोग ये 5 डिग्री को सबट्रैक्ट कर देंगे, हमें क्या मिलने वाला है? 85 डिग्री। एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। ये वाले आर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच के एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 85 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना होगा। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में कुछ डाउट्स होंगे। डाउट नंबर 1 कि क्या हमें हर एक क्वेश्चन के लिए जो हमारा 2 मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स है उन्हें हमेशा सबट्रैक्ट ही करना होता है क्या? आंसर इज नो। कुछ क्वेश्चंस में हम सबट्रैक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम ऐड करते हैं। अभी कभी सबट्रैक्ट करना है, कभी ऐड करना है, वो जब भी हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स मूव ऑन विद सेकेंड सब क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 20/7। जो मिनट हैंड है वो तो हम नॉर्मली बनाएंगे, पर जो हमारा आर हैंड होगा 20/7 दिया, मतलब 7 और 8 के वो थोड़ा सा बीच में होगा। एंगल बिटवीन द मार्क्स, ये जो ना क्लॉक रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका एक ट्रिक होता है, तो वो मैं आपको ये वीडियो के बीच में कहीं पे भी बता सकती हूँ। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल देन, ठीक है। 4 and 7 कितना होगा? देखो 3 × 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हमारा? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द मार्क्स 7 and आर हैंड। देखो अभी हमारा 7 है हमारा ये वाला पार्ट, और आर हैंड है हमारा ये वाला पार्ट। तो हम ये इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है वो हम फाइंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन द मार्क्स 7 and आर हैंड कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द एंगल विच इज ट्रेस्ड बाय आर हैंड। आर हैंड इन कितना मिनट तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन में दिया कितना मिनट से? 20 मिनट्स है, वो भी हम लिख लेंगे। अगर एक मार्क 60 मिनट्स लेता है, 20 मिनट्स में कितना मार्क्स होगा? 20/60, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा?
1/3 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऐसा आंसर मिलता है ना 1/3, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है हमारे जो 30 डिग्री होता है ना, एंगल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स, उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग को यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 10 डिग्री। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री था, यहाँ पर हम लोग प्लस 10 डिग्री कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब आप लोगों को ये भी डाउट आया होगा, मैम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में तो सबट्रैक्ट किया था, 90 - 5 डिग्री किया था तो हम लोग को 85 डिग्री आया था, यहाँ पर हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं? तो ये भी वो ट्रिक का ही पार्ट होगा। आई विल बी टीचिंग यू नाइसली कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद दैट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 35 past 1। 35 ये हमारा मिनट है, पहले तो हम 35 मतलब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा है past 1। past 1 मतलब 1 और 2 के बीच में होगा वो, राइट। इस तरीके से डॉटेड जो हमारे लाइन्स है वो हम बना लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने स्टेटमेंट सब सेम लिखा है, ये जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट तो सेम है। अभी देखो एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन कौन से मार्क्स होंगे, एंगल बिटवीन द मार्क्स 2 और 7। देखो यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया 2 से लेके हम लोग कहाँ तक आए, 7 तक है। तो 2 से लेके 7 के बीच में कितने मार्क्स हैं हमारे पास, 6 इंटू 30 डिग्री। 6 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर। एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन सा मार्क्स, 1 एंड आर हैंड। 1 एंड आर हैंड क्यों, देखो आर हैंड हमारा, आर हैंड कौन सा है, ये है, एंड 1 किधर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग का जो मार्किंग होगा, जो एंगल होगा, उसका मेजर हम फाइंड करेंगे। तो एंगल बिटवीन द मार्क्स 1 एंड आर हैंड इज इक्वल्स टू एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 35 मिनट्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 मार्क 60 मिनट्स, तो कितने मार्क्स 35 मिनट्स में कवर होंगे, दैट इज 35/60। जब भी हम करेंगे तभी हमें मिलेगा 7/12। 7/12 इंटू 30 दैट इज 35/2, हमें मिलने वाला है 17.5 डिग्री, ठीक है। 17.5 डिग्री मिला। अभी देखो एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री हम लोग को प्रीवियसली मिला था, उसमें से हम लोग 17.5 डिग्री को सबट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 162.5 डिग्री। अभी आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो हम लोग ने देखो इसी एक्सरसाइज में हम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें हम लोग को देखो ऐसे डेसिमल पॉइंट के साथ डिग्री के मेजर्स दिए हुए थे, हम लोग ने उसको मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था। तो सेम वे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 162.5 है, तो हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री बराबर, ये 162 डिग्री वैसे ही होगा, ये 0.5 इंटू 60, क्योंकि क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये हमें लिखना होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 162 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। अभी हमारा जो मिनट वाला पार्ट है, क्या वो डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, फाइनल आंसर मिल चुका है, दैट इज 162 डिग्री कॉमा 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये है एंगल बिटवीन आर एंड मिनट है, ठीक है। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, 1/4 to 6 मतलब क्या होगा, 5:45 बराबर। 5:45 है मतलब ये 5 और 6 के बीच में होगा। हम लोग यहाँ पर डॉटेड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अभी एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन कौन से मार्क्स, 6 और 9। देखो 6 किधर है, यहाँ पर है, 9 किधर है, यहाँ पर है। देखो तो ये वाला जो भी मार्क्स है, कितने मार्क्स है टोटल उसमें, वहाँ पर हमारे पास है 4 मार्क्स। 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर। अभी एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन सा वाला मार्क, 6 और आर हैंड। देखो हमेशा याद रखो, आर हैंड जिधर जिसके पास होता है ना, हमें वो कंसिडर करना है। तो आर हैंड हमारा यहाँ पर है और ये हमारा 6 है, तो इनके बीच वाला एंगल हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आर हैंड एंड 6 या फिर 6 एंड आर हैंड इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन कितना मिनट्स, 45 दिया। क्वार्टर मतलब कितना होता है, 45 राइट। तो हम लोग ने लिखा एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन क्वार्टर पास्ट दिया है, राइट, यहाँ पर हम लोग को तो 45 मिनट्स। तो अगर हम उसे ऐसे फॉर्म में जब भी हम सॉल्व करें, दैट इज 1 मार्क इज 60 मिनट्स, तो कितना मार्क विल बी ट्रेस्ड इन 45 मिनट्स, दैट इज 45/60 विच इज 15/20, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं 3/4, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, ठीक है।
तो हम लोग एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड क्या लिखेंगे, 120 माइनस 22.5 डिग्री, जो कि हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 97.5 डिग्री। जैसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 97 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 97 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60 मिनट्स, that is nothing but equal to 97 degree plus 30 minutes, that is equals to 97 degree comma 30 minutes. ठीक है, now comes the most awaited part, that is the trick. तो वो ट्रिक को समझने के लिए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा आर हैंड क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, 10 पास 11 दैट इज 11:10, तो ये हमारा हो गया मिनट हैंड, और ये था हमारा यहाँ पर आर हैंड, जैसे डॉटेड लाइन्स बने थे, अभी डॉटेड लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। इस वाले केस में अगर आप गौर से देखोगे, जो मिनट हैंड है वो हमारे आर हैंड से आगे है, ये एक ऑब्जर्वेशन याद रखो, मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर हैंड, बराबर। और एक कंडीशन होगा, आर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड। आपने अभी 4 क्वेश्चन में देखा होगा, कुछ जगह पे ऐसा भी हो रहा था कि हमारा जो आर हैंड है वो हमारे मिनट हैंड से आगे, कौन से वाले क्वेश्चन में, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में, इसमें टाइमिंग कितना हो रहा है, 20 पास्ट 7, मतलब समवेयर यहाँ पर ऐसे। इसमें हमारा जो आर हैंड है वो हमारे मिनट हैंड से आगे है, राइट। अभी हमने जस्ट नाउ देखा, एक केस था मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर हैंड, दूसरा केस था आर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड। हमेशा याद रखो, रिमेंबर, ये क्लॉक रीजनिंग के क्वेश्चन का ये बेस्ट ट्रिक होने वाला है। जब भी मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर हैंड, तभी हम लोग हमेशा जो हमारे 2 एंगल्स हम बाद में फाइंड करते हैं ना, तो वो दोनों एंगल्स के बीच में क्या होने वाला है, सबट्रैक्शन। हम दोनों एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे, एंड जब भी आर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड, तभी हम क्या करेंगे, एडिशन, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। क्लॉक रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कौन से भी क्वेश्चन उठा लो ऐसे, जब आपको एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड करना होता है, ठीक है। क्लॉक रीजनिंग में भी अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन है कि आपको आर हैंड एंड मिनट हैंड का बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है, तो जब भी आपको ऐसे एंगल फाइंड करना होता है तो आप ये वाला ट्रिक यूज करोगे। आई होप आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी आप ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम स्टेटमेंट से लिख लेते पर हम लोग को यही नहीं समझता कि हमें ऐड कभी करना है, सब्ट्रैक्ट कभी करना है, राइट। सो वो सारी चीजें भी हमें अगर एक बार समझ में आ गई, दिस क्लॉक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इट बिकम्स वेरी इजी। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 220 हम लोग को दे दिया, हम लोग को ऐसे 20 पास 10 ऐसे नहीं दिया, हम लोग को डायरेक्टली दे दिया 220। इजीली हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो मिनट हैंड कितने पे है, 20 पे है, आर हैंड है 220 रहे, तो वो 2 और 3 के बीच में होगा, डॉटेड लाइन सब बना देना। एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन कौन से मार्क्स, एंगल बिटवीन द मार्क्स 3 and 4 कितना है, सिर्फ 2 ही है, राइट। सो 2 into 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एंड एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन कौन से मार्क्स, 2 and आर हैंड, 2 and आर हैंड के बीच में कितना है, दैट इज विल बी इक्वल टू एंगल ट्रेस पे आर हैंड इन कितने मिनट्स पे, 20 मिनट्स में, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। सो 20 बाई जब भी हम लोग 60 करेंगे विल बी गेटिंग 1/3, so 1/3 into 30 is equals to 10 degree. So therefore the angle between R and minute hand is equals to 60 degree minus 10 degree, that is equals to 50 degree. So our last question, that is 6th sub question of question number 14, जो कि है 10 10. तो 10 10 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मिनट हैंड तो हमारा 10 पे होगा, आर हैंड 10 है तो 10 and 11 के बीच में होगा, ठीक है, बराबर। डॉटेड लाइन्स बना दिए। अभी देखो यहाँ पर हमारा जो मिनट हैंड है वो हमारे आर हैंड से आगे है। व्हेन मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर हैंड, तभी हम क्या करते हैं, सिंपली हम सबट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। एंगल बिटवीन द मार्क्स, कौन से मार्क्स, 10 and 2 कितने हैं, 4 है, सो 4 into 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। एंड और एक एंगल बिटवीन द मार्क्स 10 and आर हैंड, 10 and आर हैंड कितना हो जाएगा, that will be equal to the angle traced by R hand in कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। so 10/60 will be 1/6, 1/6 into 30 will be equal to 5 डिग्री।
So since here minute hand is ahead of our hand, the angle between our hand and minute hand will be equal to 120 degree minus 5 degree, that is equals to 115 degree. ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझाना तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा ये फाइनल स्टेप में. देखो आपको ना फर्स्ट के जो भी स्टेटमेंट्स है ना वो तो ईजी है, लाइक उसमें आपको इतना कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग फाइंड कर सकते हो, जहाँ वहाँ पर आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है. आपको मैंने बेसिक कुछ चीज़ें सिखा दी, आप वो समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा. एंड यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट. हमारा जो जब भी फाइनल स्टेटमेंट लिखने की बारी आती है ना, जब भी ये वाला पार्ट लिखने की बारी आती है ना, तभी बहुत कंफ्यूजन होता है. एंड द मेन कंफ्यूजन है कि हम लोग को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है. बिकॉज अगर आपने ऐड करने की जगह पे सबट्रैक्ट कर लिया या फिर अगर आपने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर गलत आ जाएगा. ओके सो अगर आपने ये वाला जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर आपने ये वाला ट्रिक यूज़ किया कि मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर हैंड के टाइम पे आपने सबट्रैक्शन किया एंड आर हैंड इज अहेड ऑफ मिनट हैंड के टाइम पे आपने एडिशन किया, तो आपको इजीली फाइनल आंसर, करेक्ट फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन रिलेटेड to that. Okay, so हम लोगों ने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर दिया है विद ऑल द सब क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोगों ने 6 सब क्वेश्चंस थे इसके, वो भी सॉल्व कर दिए. उसके साथ हम लोग ने एक ट्रिक भी समझ लिया. एंड आई होप आपको वो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने करा है अलॉन्ग विद द ट्रिक वो समझ में आ गया होगा. इन माई नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाली हूँ इसके बाद, इन दैट वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2 ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, पहले चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी इंटरेस्टिंग है. उसमें भी एक आध कुछ फॉर्मूलाज है, उसको यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने. उसमें भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. लास्ट के जो 1-2 क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है. डिफिकल्ट मतलब उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो भी हम डिस्कस कर देंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो गाइस मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ. तो अभी हम लोग मतलब इस वीडियो में मैंने आपको इन शॉर्ट में जो क्लॉक रीजनिंग का जो ट्रिक था, लाइक जो ऐसे 2 लाइन वाले ट्रिक की आपको समझा दिए, बिकॉज दैट इज ओनली रिक्वायर्ड हियर. बट मैं एक वीडियो डालूंगी, डेडिकेटेड वीडियो ऑन क्लॉक रीजनिंग का ट्रिक, जिसमें हम लोग ने जो ये वाला ट्रिक डिस्कस किया वो तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड मैं आपको और ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपका जो ये क्लॉक रीजनिंग का कौन सा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे. बिकॉज द फैक्ट इज कि हमारे जो फाइनल एग्जाम्स में इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारे बुक के ही क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप सॉल्व करोगे ना, बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा. पर जब भी आपको दूसरा समझो एक अलग क्वेश्चन आ गया, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, एंड आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू द ट्रिक या फिर वो क्वेश्चन के रिलेटेड. तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ऑन क्लॉक रीजनिंग का ट्रिक, जिसमें हम इन डिटेल में ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे. 1.2 के बाद मिसलेनियस भी आ जाएगा. एंड साथ साथ मैं ये वाला क्लॉक रीजनिंग का ट्रिक का भी वीडियो डाल दूंगी. I really hope you enjoyed watching this video. If you really did, so don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.